بالغہ عورت لڑکی نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر خود سے ہی غیر کفو میں اگر نکاح کر لیا ہے تو اس نکاح کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ نکاح منعقد ہوگا اور اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا یا نہیں؟ اس کا شرعی حکم وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے، یہ سوال ہے۔ جواب: اگر کوئی لڑکی اپنے اہل خانہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کسی غیر کفو میں نکاح کر لیا ہے تو اس طریقے سے کرنا معاشرے کے اندر اور شرعی اعتبار سے بالاتفاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو ناپسند کہا گیا ہے۔ تاہم اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے میں اگر اولیاء کی رضامندی کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے تھا، یہی شرعی حکم ہے کہ اولیاء کی رضامندی کے ساتھ اس نکاح کو منعقد کیا جائے تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے لڑکے لڑکی آپس میں راضی ہو گئے اور نکاح کر لیا غیر کفو میں، لیکن اس طرح کا نکاح ہو جاتا ہے جس طریقے سے لڑکا لڑکی آپس میں کر رہے، اس طریقے سے نکاح ہو جائے، تو احناف کی ظاہری روایہ یہ ہے کہ یہ نکاح تو شرعی اعتبار سے منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں اولیاء کو شرعی عدالت میں حق اعتراض حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری روایہ ہے۔ دوسری ایک روایہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے وہ اس طریقے سے کہ جس میں یہ حکم ہے کہ اس طرح کے نکاح کو سرے سے غیر منعقد مانا گیا ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ایک دوسری روایت جو ظاہری روایہ ہے حضرت حسن بن زیاد کی، وہ یہ کہ جس میں اس طرح کے نکاح کو غیر منعقد مانا گیا ہے، بہت سے متأخرین علماء نے، مفتیان کرام نے، محققین علماء نے جو ہے اسی روایت کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا ہے۔ لیکن ایک صورت اس کی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آج کل جو موجودہ دور چل رہا ہے، موجودہ زمانہ، چونکہ آج انٹرنیٹ کی سہولت اور بڑے بڑے اسمارٹ فون ہونے کی وجہ سے اور مخلوط شہروں کے اندر، اب تو شہر کیا دیہات کیا ہر جگہ کا حکم یہی ہے کہ مخلوط تعلیم ہونے کی بنا پر لڑکے لڑکیاں کئی سال تک مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مخلوط تعلیم کے عام ہونے کی بنا پر لڑکے اور لڑکیاں کا جو جوڑ ہوتا ہے اور آپس میں میل جول ہوتا ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے، اس قدر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں میل جول کو بڑھا لیتے ہیں کہ پھر اس میل جول کو لڑکا اور لڑکیاں اور گھر والے اس میل جول کو توڑنا چاہے تو لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کے درمیان جو ہے اس طریقے سے منافرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں اس صورت میں جو لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں میل جول بڑھ جاتا ہے، یہ کفاءت کا اعتبار بھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ آپس میں یہ جب پیار اور محبت ہو جاتی ہے تو لڑکا اور لڑکیاں یہ کوئی کفاءت کو شرعی حکم جو تھا اس کو مد نظر نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے عمومی حالات میں مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں ظاہری روایت پر فتویٰ دیتے ہوئے نکاح کے انعقاد کا حکم دیا جائے۔
जिस तरीके से ऊपर मैंने कहा पहले कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी रिवायत यही है कि निकाह तो मुनक़िद हो जाता है, लेकिन औलिया को शरई अदालत के अंदर इस सूरत में हक़ एतराज़ हासिल होता है, इसलिए इस पर फतवा देना ये ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है और इनकाद का हुक्म दिया जाए तो ये बेहतर है। लेकिन औलिया जो होंगे, लड़की के जो घर वाले होंगे, अइज़्ज़ा अक़रबा, रिश्तेदार, भाई बहन, चचा और जो कोई भी उसके अइज़्ज़ा अक़रबा जिसको औलिया का हक़ हासिल है, वो लोग इसको हक़ एतराज़ हासिल होगा ताकि दोनों पहलुओं की रियायत रखी जा सके, ये ज़्यादा मुनासिब है। इसलिए कि आज लड़के और लड़कियां मखलूत तालीम हासिल करने की बिना पर इस कदर आपस में घुल मिल जाते हैं कि लड़का और लड़कियां ना ही वो ज़ात पात को देखते हैं, ना ही हिंदू मुस्लिम को देखते हैं। इस तरीके से मखलूत तालीम निज़ाम जो है मुसलमानों पर इस तरीके से गालिब आ चुका है कि मुसलमान लड़कियां गैरों से जो है निकाह कर लेती है। हालांकि शरई एतबार से देखा जाए तो मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से और गैर मुस्लिम लड़की और इसी तरीके से मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से अगर निकाह करना चाहे तो शरई एतबार से दोनों का निकाह मुनअक़िद नहीं होता है। इसलिए कि शरीयत का ये हुक्म है कि मुसलमान का काफिर के साथ और काफिर का मुसलमान के साथ निकाह नहीं हो सकता है। इख्तिलाफ दीन होने की वजह से ये निकाह मुनअक़िद नहीं होता, लेकिन आपस में मुआशरे के अंदर इस तरीके से बेहयाई फैली हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मगरिबी तहज़ीब की वजह से जो हमने उस कल्चर को अपनाया और हमारी तालीम जो मखलूत हुई, हमने अपनी बड़ी बड़ी लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस के अंदर इस तरीके से तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी औरतें गैरों के साथ जो है निकाह कर लेती है और वो कहती है कि ये निकाह हुआ, हालांकि शरीयत ये कहती है कि ये निकाह नहीं है। इसलिए इस तरीके से मखलूत तालीम, गर्चे मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की ही से शादी करता है, ये क्यों हो रहा है? ये मखलूत तालीम का नतीजा है। इसलिए जो है आज मीडिया के दौर में और मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए लोग ट्विटर पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ जो है ऐप्स के ज़रिए से लड़का लड़कियां टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए बातचीत करते हैं और इस तरीके से जो है लड़के लड़कियां आपस में घुल मिल जाते हैं। ना ही ज़ात पात देखा जाता, ना ही कुफू देखा जाता है। इस तरीके से लड़के लड़कियां आपस में जो है बातचीत करते करते यहाँ तक नौबत आती है कि ये दोनों मिल जाते हैं निकाह करने से पहले, जो सरासर इस्लाम ने मना किया था। हमारी ये इस तरीके से औरतों का मर्दों का इस तरीके से इख्तिलात तालीम की वजह से हुआ, जिसका नतीजा जो है शरीयत ने मना किया था उसको हमने नहीं माना, जिसकी वजह से हमारी औरतें इस तरीके से बहकावे में आ गए। हमारे मर्द जो है इस तरीके से गैर औरतों के साथ गैर कुफू में जो है निकाह कर रहे हैं, औरतें गैर कुफू में जो है निकाह कर रहे हैं। बहर सूरत अगर मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की आपस में निकाह कर ले तो इस गैर कुफू के अंदर तो इस निकाह के इनेकाद का हुक्म दिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है, जो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी रिवाया है। मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की होना शर्त है, गैर मुस्लिम लड़का और गैर मुस्लिम लड़की से निकाह मुसलमान का मुनाकिद नहीं होता है। लिहाजा इस सूरत में मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की गैर कुफू में अगर निकाह कर लेते हैं तो इस निकाह के इनेकाद का हुक्म दिया जाना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, निकाह तो मुनाकिद हो जाएगा, ज़ाहिरी रिवायत जो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की है। लेकिन इस सूरत में जो औलिया है उन औलिया को हक़ एतराज़ हासिल होगा।
चुनांचे यही मसला जो है इस इबारात के देखने से मालूम होता है। देखिए शामी की इबारत है वहादा बिना अला ज़ाहिर रिवायती मिन अन्नल अक़द सहीहुन लिल वलीय्यिल इअ्तिराज़, ये इबारत जो है, और फिर व अम्मा अला रिवायतिल हसन अल मुख्तार लिल फतवा, ये बड़ी लंबी इबारत है। वहाँ देखेंगे शामी की चौथी जिल्द सफ़ा 206 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है, और कराची का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 84 पर। इसी तरीके से शरह उक़ूद रस्मुल मुफ्ती, इसके अंदर जो है हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी रवाया हज़रत हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। वो रिवायत हसन बिअन्नल हुर्रत अल आक़िला लव तज़व्वजत नफ्सहा मिन गैर कुफ़िन ला यसिह, इसके तहत जो है नकल किया है। आगे तफसील वहाँ देखे रस्मुल मुफ्ती के सफ़ा नंबर 96 सतर नंबर 13 पर। इसी तरीके से अल बहर रायक किताबुन निकाह तीसरी जिल्द सफ़ा 226 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है, और फतावा हिंदिया की पहली जिल्द सफ़ा 292 और मुहित बुरहानिया चौथी जिल्द सफ़ा 61 मसला नंबर 3630 पर इसको नकल किया है। किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द सफ़ा 72 और 73 पर इन कुतुब के अंदर इसकी तफसील को देखे तो वहाँ जो है मिलेगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस तरीके से गैर कुफ़ू में अगर लड़की निकाह कर लेती है तो ज़ाहिरी रिवायत यही है कि निकाह तो मुनक़िद हो जाएगा, लेकिन शरई अदालत में उसके जो औलिया है उस औलिया को हक़-ए-इअ्तिराज़ हासिल होगा। खुलासा इसका यही है।